This building has costed you, the taxpayer, somewhere between 10 to 15 crore rupees. Built in between 2017 and 2022 on Gram Sabha land, 12 acres of village common land that belonged to the people of Bakkarwala. This was supposed to be Delhi's first teachers' institute, a world of art skilled university with 5,000 students, digital labs, a library. The government announced it, built it, photographed it, and then just walked away. On the first day of 2022, Manish Sisodia had posted a photograph on Twitter that felt like a promise. The then Deputy Chief Minister and Education Minister stood beside a glistening four-story structure in Bakkarwala village, West Delhi, its facade wrapped in green and silver aluminium composite panels, catching the January morning light. The building looked brand new, polished, ready. This is what the building looks like today. What is left is only the color of bare concrete and dust. There are no students, there are no teachers, there is no institution. There are only two security guards posted round the clock, protecting what little is left of a building that cost the Delhi government over rupees 8.59 crore to construct, along with an additional 3 crores to make a boundary wall. And that has never been used. This isn't the story of one broken building. This is a story of what happens when a village is far away from Lutyens, Delhi, that no one notices when you fail them. Bakkarwala sits in outer West Delhi, past Nangloi. It is accessible by roads that leave the main arteries of the city behind. Here, some residents still depend on agriculture for their livelihood, but the village itself has changed dramatically over the past 2 decades. Housing colonies have steadily expanded, a government school now educates children up to class 12, and the population has more than tripled since the 456 families recorded in the 1991 census. Yet, not much has changed for the urban village when it comes to public infrastructure. Residents say the nearest college is over an hour and a half away, while the closest metro station requires roughly 25-minute journey by road, for which one has to even cross a toll-free booth. Despite its growing population, the village retains a distinctively rural character. Tree-lined roads stretch past fields and residential clusters, with not a single shop or commercial establishment visible within a kilometer of the proposed campus. It is in this context that the announcement of a major government educational project sometime around 2015 felt significant. The women of the village are specifically distraught over the building's existence because it serves to be a den for the men of the village who can take shelter inside this building to do drugs and for alcoholism. ये कॉलेज बनाया उसी दिन से खाली पड़ा रहा, फिर कई दफ़ा हो चुका पर ये कॉलेज चालू नहीं हुआ अभी। पता नहीं क्या दिक्कत है, ना परेशानी का पता नहीं। 10-15 साल तो हो ही गए हमें देखते देखते, उससे आगे हो तो नहीं कह सकते हम। ये जब बन रही थी तो क्या बोला जा रहा था, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? कॉलेज कॉलेज ही बताया गया था, कॉलेज बनेगा, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ तो गंद खाना ही मचा के रख दिया गया है अब तो। हो चुका है और खिड़की दरवाजे सब कुछ काट लिया, सारा तोड़ ताड़ के ले गए चोर भाई। पीने खाने वाले यहीं लौटते हैं, यहीं बैठते हैं, वही इसमें कितने धंधेबाजी कितने करते हैं साले। और कितनी गंदा ही यहाँ मचा रखा है बहुत ज्यादा। इसका एक बार जो है उद्घाटन भी हो चुका है, मैंने सुना है। जब बना था, जब ही उद्घाटन हुआ था। और फिर क्या नाम, पिछली बार तो वो भंडारा था। ये तो साहब बहुत दिन से है, करीब 5-7 साल हो गए मेरे को बने हुए। और बनने के बाद चाबी दे गए सरकारियों को, मीडियम वालों को या किसको भी। और खेल कूद के लिए उन्होंने ज़मीन मांगी, ये ज़मीन दे दी। उसके बाद इसमें चोरी हुई, रात दिन कोई देखने नहीं आया। ये तो टूटने के बाद बैठे हैं, जब पूरा टूट गया, उसमें कुछ नहीं रह गया, तब चौकीदार लगा दिए 2-2, 3-3। अब वो कर रहे हैं, कोई आता है कोई जाता है बस। ये बिल्डिंग तो मतलब बहुत दिन से ओके हो रखी थी, बाकी तो यहाँ पे मतलब जिसने बनवाया था वो गार्ड उड़ नहीं रखा, फिर इसे चोरों ने तोड़ ताड़ ले गए, सब फोड़ फाड़ दिए। इसका मतलब ऐसे कर दिए तो काफ़ी दिन से 2-3 साल यूँ पड़ा था, कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं थी। अब 1 साल हो गया, मतलब यहाँ गार्ड कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये नहीं मुझे मालूम है कौन इनको भेजा है। बाकी तो बिल्डिंग ने बहुत अच्छे बना था, हम लोग सोचे थे कॉलोनी भी विकास होएगा, इसके वजह से नहीं।
बाकी तो कुछ नहीं मतलब उसका सोल्यूशन निकला है यहाँ पे। खेलने की जगह बहुत ज़रूरत थी, मतलब उधर पार्किंग दे रखे है छोटा सा, वो भी मतलब हमारे अंडर नहीं है, उधर साइड है गौशाला के पीछे साइड। हम लोग सोच रहे थे थोड़ा पार्किंग हमारे बच्चे खेलने के लिए इधर अगर मिल जाए तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी घूमने फिरने निकलते हैं तो कहीं जगह ऐसी नहीं है। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि ये बिल्डिंग सरकारी योजनाओं के तहत बनी थी जो बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती, लेकिन ये जो है ना सारा इधर के नशेड़ी चरसी लोग जो हैं वो नशा पानी के चक्कर में सारा लूट के ट्रक भर भर के ले गए। कोई देखने वाला नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं हुआ इस पर। और ये पीछे गाय भैंस के तबेले बांध रखे हैं जिससे गंद आती है, और भी गंदगी है। गवर्नमेंट इसको साफ़ भी नहीं कराती, कीड़े मकोड़े हैं। अभी जिससे 8-10 महीने पहले मुझे सांप ने काट लिया था, 15 दिन में आईसीयू के अंदर भी रहा था। तो हर एक के घर में सांप कीड़ा निकलता रहता है, छोटा बच्चा है, गली नाली साफ़ नहीं होती, पीछे भी जंगल है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सरकारी ज़मीन बहुत सारा है, यहाँ पे डीडीए के फ्लैट वगैरह भी बना सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ बनाना नहीं चाहती। यहाँ पे गंद पड़ा है, आए दिन इससे बीमारियाँ होती है, लोगों को दिक्कतें होती है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। सामने सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और उसी के बगल में रोड टूटा हुआ है, 10 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। किसी ने आज तक उस पर कोई बात नहीं की। बात होती है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे बांटना, महंगाई सस्ताई, बस यही चीज़ें होती है और कोई काम नहीं होता। अभी यहाँ पे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के पीछे चरसी गंजेड़ी स्मैकिया रंग बिरंग के नशेड़ी लोग बैठते हैं, नशे करते हैं, यहाँ से चोरी चकारी करते हैं, झगड़ा करते हैं, रंग बिरंग की चीज़ें करते हैं। इस पे गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है। तो मैं आग्रह करूँगा यहाँ की गवर्नमेंट से कि कृपया इस पे कोई एक्शन ले। का बोला ये कॉलोनी के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल बनवा देते, कोई बढ़िया स्कूल अटियाई बनी थी वो भी नहीं चालू हुई। पैसा लगा के क्या करते हैं, गरीबों के खून चूस के बस करते हैं, और उसके बाद तो कुछ नहीं कर पाते हैं, सब फंस जाता है। इतनी जगह है, कोई हॉस्पिटल छोटा मोटा बना दें, गरीबों का गुजारा हो जाता है। स्कूल बनवाए वो भी नहीं चालू करें, वो भी उजड़ पजड़ के ले गई दुनिया जनता बेटी। और क्या कर सकते हैं, गरीब इंसान क्या कर सकता है, आशे पर मरता है, आशा टूट जाता है, आशे पर रहता है, आशा टूट जाता है गरीबों के। हम लोग भी सोचे जीते जी कोई हॉस्पिटल बन जा, गरीबों के दुखे तकलीफ़ें दूर दूर जाना पड़ता है तो कोई बन जाए यहाँ नेरे, तो अपना गुजारा हो जाएगा। कुछ नहीं बना, सपने होता है कि ये बनेगा वो बनेगा, नेता होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, नेता होने के बाद सब बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। I want you to open Google Maps. Now look for Bakarwala in West Delhi. Then you can check how far it is from the India Gate. It's not another country, not another state. Same city, same government, yet one is always talked about and the other is barely ever noticed. What it does is that it makes it easy for projects like this to hide their failure. In Delhi's Dehat, this is Saman Hussain reporting for The Print.